Hello students, today we will start our lesson 8 part 1 of Beehive book, that is Santosh Yadav. Think for a while and make a list of 3 to 5 person you idolize. Idolize होता है worship, जिनको हम अपना ideal मानते हैं और admire very much for their achievements, कि हमें ऐसे 3 to 5 persons की list बनानी है जिनको हम अपना एडमायर, जिनकी हम बहुत एडमायर करते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ. जो आपके आइडियल्स हैं वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हो सकते हैं. स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर. After that, your teacher will then discuss your choice with you to find out who the top 5 idols of your class are. The only woman in the world who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. Only man. Santosh Yadav was the only woman in the world who had scaled Mount Everest twice, was born in that type of society where the birth of a son was regarded as a blessing and the birth of a daughter was not regarding cursed but was not welcomed. When her mother was pregnant, Santosh, a traveling holy man, giving her his blessings, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they didn't want a son. Means when Santosh mother was pregnant and she was expecting Santosh, at that time जो ज्योतिषी कहते हैं ना, आने जाने वाला एक होली मैन, ज्योतिषी ने क्या उसको आशीर्वाद दिया, क्या ब्लेसिंग्स दी कि तुम्हारे बेटा हो. बट सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए जब संतोष की दादी ने क्या कहा कि हमें बेटा नहीं बेटी चाहिए. बिकॉज संतोष मदर at that time already has 5 sons. The holy man was also surprised after listening that blessing from her grandmother, कि उसकी दादी से ये सुनकर वो होली मैन भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि इनको बेटा नहीं बेटी चाहिए, क्योंकि उस जमाने में, उस सोसाइटी में बर्थ ऑफ अ सन was regarded as blessing and birth of a daughter was not welcomed. So he gave the requested blessing. अब उसने क्या blessing दी कि इनकी बेटी हो. As the destiny would have it, और भाग्य में भी ये लिखा था, blessing seemed to work, और उस होली मैन की blessing ने काम किया. संतोष was born the 6th child in a family with 5 sons. और इसके बाद होली मैन की blessing से संतोष का जन्म हुआ एज अ 6th चाइल्ड, छठे बच्चे के रूप में 5 sons के बाद. A sister to 5 brothers, she was born in the small village of जोनियावास of रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. मीन्स संतोष का जन्म एक रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष and she was given the name Santosh, which means contentment. Contentment means satisfaction, santushti. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. but उस समय में जो लड़कियों की एक सोसाइटी के अंदर इमेज थी, संतोष उससे कंटेंटमेंट नहीं थी, उससे कंटेंटेड नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. शुरू से ही उसने अपना जीवन अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जो दूसरी लड़कियां उसके गांव की, उसके एज ग्रुप की जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, बट जो संतोष है वो क्या प्रेफर करती थी, शॉर्ट्स. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that I chose a correct and rational path.
हमेशा ही उसने सही और साइंटिफिक रास्ता चूज किया। कभी भी वो झूठे ढकोसले ये जैसे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में कभी भी बिलीव नहीं करती थी। एंड अदर्स राउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, और क्या कहती थी कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें मेरे लिए चेंज होना होगा, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होंगी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट होते हैं रिच पर्सन्स, लैंड ओनर्स, जो उसके पेरेंट्स थे दे वर रिच लैंड ओनर्स, जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जबकि वो संतोष को एक अच्छे स्कूल में भेज सकते थे पढ़ने के लिए, even to country's capital New Delhi also, which was quite close by. Means Santosh parents were rich land owners. They could send Santosh to gain higher study in New Delhi, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। बट जो उनकी फैमिली के अंदर उस समय जो प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मीन्स जो प्रेजेंट टाइम प्रचलन था, कस्टम, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, और भी संतोष को गांव के ही स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे वन द राइट मोमेंट अराइव। जब सही समय आया तो उसने अपने कस्टम्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गलत चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। एंड द राइट मूवमेंट के वन शी टर्न 16, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। एट दैट टाइम इन हर विलेज द गर्ल्स बिलोंगिंग टू 16 एज ग्रुप वर married, but Santosh was not under pressure, was also under pressure from her parents to do the same. मीन्स संतोष के पेरेंट्स ने भी उसके ऊपर प्रेशर डाला कि वो अपनी 16 ईयर्स की एज में मैरिज कर ले। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. But उसने अपने पेरेंट्स को चेतावनी दी, वार्निंग दी कि मैं जब प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त करूंगी, she wouldn't marry. She left home. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. और अपने आप को दिल्ली के स्कूल में नाम लिखवा लिया, एनरोल करवा लिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। और उसने ये भी कह दिया कि तुम चाहे मेरी दिल्ली में पढ़ने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं दो, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल की फी पे कर लूंगी। Her parents then agreed to pay for her education. After listening this from Santosh, Santosh parents were agreed to pay the fee for her schooling in New Delhi, wishing always to study a bit more. Bit more means little more. हमेशा से वो कुछ और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। And with her father slowly getting used to her urge for more education, and she always urged her father for more education. Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. Means after passing high school examination, she went to Jaipur. She joined Maharani College in Jaipur and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, कि जो कस्तूरबा हॉस्टल का जो फेस था, फ्रंट था, उसके सामने क्या थी, अरावली हिल्स थी। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे। नाउ यू हैव टू रीड these 2 pages thoroughly from the text after listening this video.